Good evening, students. Now we'll continue our topics. Physics. The name of topic is motions. Before learn the topic motions and before learn the topic physics, first we'll understand what is the science first. What is the science? Here the topics what you have to learn today. What is the science? What is physics? And then the basic maths also we have to discuss. Okay, because maths is related subject with the physics. I think we are very familiar with the science. What is science? Science is nothing but systematic study of any subject. Those we have the observations, analyzations, experiment. That subject is related to science. Here given the definition of science: to observe the identification, description, experiments, investigations, and theoretical explanations of the natural phenomena. That having the science. Science का मतलब क्या है? किसी भी चीज का, कोई भी चीज सब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना है, वो स्टडी को क्या कहोगे आप? साइंस. साइंस हैव मेनी ब्रांचेस, बहुत से ब्रांचेस है उसके. अमॉन्ग दैट ब्रांचेस द फ्यू ब्रांचेस आर देयर. हिस्ट्री. हिस्ट्री आल्सो साइंस. सोशल साइंस. यहाँ पे क्या पढ़ते हैं अपन? कोई लोगों ने क्या गलतियां की, गलती करके क्या एनालाइज किया और कुछ सीखे हैं अपन. सोशल साइंस. वी आर सेइंग ना that same way the geography, how the climate is there, how the changing is, how the seasons are coming, the ecology, the chemistry, medicinal science, physiology, genetical science, the biology, the chemistry, all the science, the physics. Actually what is the physics? Basically physics is the study of matter. Matter क्या होता है पता है आपको? क्या है matter? Yes. Yeah, very good. Any things those having the mass and occupies the space is known as matter. Then what is physics? Physics is the study of matter as well as the study of energy. यानी whatever you are observing in your surrounding, that study of that is known as the physics. Means come to know how कितना बड़ा vast branch है ना. तो यहाँ पे आपने देखना है. Now here the given the science means to know knowledge, awareness are understood. आपको किसी के बारे में नॉलेज लेना है, कुछ मालूमात निकालना है. दैट इज इंक्लूडिंग द साइंस. हाउ वी आर फॉर दैट व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर काइंड ऑफ, विच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट यू आर डूइंग, दैट इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स दे आर इंक्लूडिंग इन अ साइंस. इट इज अ लैटिन वर्ड. द मीन्स द नॉलेज. आप नॉलेज ले रहे सब्जेक्ट के बारे में, कुछ क्यूरियोसिटी आपको उसके बारे में, अवेयरनेस. नॉलेज लेने के बाद उसको आपको मालूम हो जाएगा सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं. एज वेल एज टू हैव टू अंडरस्टूड द सब्जेक्ट्स इज रिलेटेड विद दैट in science. Now after we'll go in detail now about the okay here the physics. I already explained about the physics. Physics is study of surrounding. जो भी आपके आजू बाजू में, study of the nature. Okay, basically it's a study of matter as well as the energy. Here given definition: physics is the scientific study of the physical phenomena like the motion and matter and the energy and the force. Actually here the definition is elaborated. Actually what? The matter including all the things. In energy including the force also. Here energy including the force also as well as the motion also. With different types of the energies are. Chemical energy also including in that only. The kinetic energy, potential energy, all kinds of energy including in a physics. Means in short what we are saying, study of the matter as well as the energy. That is including in a physics. It helps to understand the worlds around us. यानी बताए क्या है अपने सराउंडिंग में, क्या है पूरा, क्या है वर्ल्ड सराउंडिंग में. इवन द एयर आल्सो. एयर इज आल्सो द काइंड ऑफ मैटर. एयर के बारे में जानना है, किसी के बारे में भी जानना है, तो वो भी क्या है? फिजिक्स, स्टडी ऑफ फिजिक्स. ओके, इट इज अ वेरी वास्ट ब्रांच. द फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द साइंस इज कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस. And because of the branch of natural science like the chemistry, astronomy, geology and biology are considered by the laws of physics. सभी में क्या है? फिजिक्स के कुछ लॉज होते हैं, तो वहां पे the laws are applicable. Okay. Now here the basic maths. Now I have to introduce you the basic maths. Basic maths में क्या होना चाहिए आपको? Just you should know about how to multiply the numbers. Basically I think you know how to multiply by the number, divide the numbers, fractions के divisions, fractions के multiplications, the exponential, that terms,
you have to here the fractions and decimal. What is the fractions? आपको पता है क्या है fractions? क्या होता है? फ्रैक्शन किसे कहते हैं? That is known as fraction. Rational number. Rational number is given the p and q are the integers. The same definition is you are approaching very good. In the fractions, we are seeing the p by q. Just minor difference is there. The p by q, according to him, and p belongs to, this is known as belongs to natural number, and q also belongs to the natural numbers. These are known as the fractions. And if suppose if you are saying the p and q belongs to the integers and q is not equal to 0, that will be including in the rational numbers. But just what you have to remember, the denominators and numerators both are positive in fractions. Fraction means the part of whole. whole का कुछ part. whole का मतलब क्या है? ये suppose ये तुम्हारा whole है, complete part है ना? इसका कुछ हिस्सा है, ये क्या है तुम्हारा फ्रैक्शंस. जैसे कि तुम्हारी बॉडी होल है, तुम्हारा हाथ तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, फ्रैक्शन है. पैर, नोज, फेस, दीज आर द फ्रैक्शंस ऑफ योर बॉडी. समझ में आ गया है? फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ द होल, नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी. फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ द होल, पूरे का कुछ हिस्सा इज नोन एज अ फ्रैक्शन. अंडरस्टूड नाउ? तो जैसे कि दिस सर्कल इज देयर. Now just I am dividing the circles. Now the one circle is here, and among that one I am just cutting. What is the fraction? This one 1 by 4 means ये चार हिस्सों में से एक हिस्सा क्या है तुम्हारा, इसका पार्ट है. That is known as the fraction. Understood? Decimal. Decimal means multiplied by the number by 10. Okay, तो आपको क्या करना है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे अपन by numbers of 10. Suppose fraction was 10 divided by 100. What will become the answer? 1 by 10 means 0.1. Okay, means we will come to know 0.1 means when we are dividing the numbers and when we are multiplying by the numbers by 10, the shifting of the zeros or shifting of the point. If suppose we are adding any number, कोई number लिख रहे हैं अपन 2 by 10, कोई number नहीं, तो यहाँ पे point है, दिखता है क्या आपने को? पर point होता है. When we dividing the numbers, just you have to count the number of zeros and according to that you have to shift the numbers point that side. इसका मतलब क्या आएगा तुम्हारा 2 divided by 10 is 0.2. Got it? 7 divided by 1000 कितना आएगा? 0.00. Very good. This point is here. If you are first you have to write 0, and if you are shifting how many digits? 1 to 3. Means you have to count here. Here's from 1, 2 and 3 you will get the answer. That is 0.007. Understood? The same number if you are supposed multiplying by the 10, the shifting of the zeros on right side. If you are dividing by 0, shifting on zeros on left side. Is it clear now? Understood? It's very simple. It is from your lower class also in maths. Here given exponents and the powers. Exponents क्या होता है पता है? Powers क्या होते हैं? क्या होता है बताइए एक्सपोनेंट्स. सपोज नंबर इज सपोज a raised to n, क्या हो गया? एक्सपोनेंट्स है ना. तो ये क्या है तुम्हारा, इसको क्या कहते हैं अपन? बेस. एंड दिस इज नोन एज द पावर. ओके, दैट नंबर्स आल्सो वी हैव टू मल्टीप्लाई. दैट्स बेसिकली 7 rules are there, 7 laws are there. That 7 laws I will explain you, and just you can note down that 7 formulas. The a power 0, what will the answer? 1. Very good. A power 0 is 1. A raised to m into a raised to n, what will the answer? A raised to m plus n. Very good. That 7 laws are there. A power m plus a power n. The same way a power m dividing by a power n, a power. Very good. Now now I am changing the base now. The a power m into b power m, then very good, ab and common power is m, that is a into b common power m. The same way
am dividing by bm, a by b, power common power m, then a power minus n, how we are writing? 1 upon a power n. How much 7 are there? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again I am something I am missing, I think. Which one is missing? Okay, the multiplication is there, a power 0 is there. That formula is you have to remember. Just you note down this same this formula is the same power. The power is there am into an, that is a power m into m plus n. In division minus, if the common sign, again one is remain, the a power m raised to n. How we are writing? A raised to m into n. Okay, that 7 formulas are useful for to find the exponents. Okay, for suppose if you simply have to find the squares, how you are finding? Suppose you have to find the square of I think you know, remember the squares. Okay, who will find the square of 102? How to find? Okay, by means different techniques, with the help of the techniques also we are able to find the squares, powers, cube roots. Here the small numbers, square roots. How to find the square roots? That including all in exponential and powers. For that purpose, just you note down the formulas of exponential. It will be helpful. All formulas noted. Just note down fast. Okay, you will get the PPTs. We'll proceed because we have that some the logarithms. Logarithms क्या है? शायद आपको अब तक पता नहीं था, पर आपको क्या बहुत से बड़े numbers होते हैं. When you are going to calculate, it is very difficult to calculate. And you will familiar with the grade 11th. Mostly if you are conducting the practicals in lab or some values in physics also and in chemistry also. For that value we need to find the logs. Okay, the same formulas of log also. It is related with the log of 1. कितना होता है log of 1? हमेशा क्या होता है? 0. So log of a into b, log of a plus log of b. सेम वैसी फॉर्मूला जाएगा लॉग के भी, वो बताता है मैं लॉग क्या होता है और एंटी लॉग क्या होता है. तो अपन उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है, वो भी अपन थोड़ा बता देंगे. लेकिन जस्ट सिंपली जो बेसिक फॉर्मूला राइट डाउन. लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय b इज नोन एज लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b. ये आपको फॉर्मूला याद करना है. सभी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन just you should know about the some formulas. Okay, the log of a power n into log of a, ये formulas है log के. Okay, just note down this these few formulas are just you can remember about the logs. Okay, यही formula logs के हैं. तो logs क्या होता है जनरली तुम्हारे जब आप कैलकुलेट करते हो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं तो उसको क्या एक लॉगरिथम टेबल होता है छोटा सा, आपको शायद पता होगा है तो फिर मालूम हो जाएगा आपको. तो उसमें वैल्यूज देख के अपन नंबर्स के क्या करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करके मैंटिसा फाइंड करके उसकी लॉग में वैल्यू देखते हैं, फिर एडिशन करके उसकी सिंपल वे से अपन उसकी कैलकुलेशन करते हैं. जो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, पावर्स निकालना आपको मैन्युअली बहुत मुश्किल होता है. तो लॉग से उसका ईजी सोल्यूशन मिल जाएगी. क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है क्या, तो लॉग टेबल आपको अलाउ होता है. लॉग टेबल देता है बोर्ड आपको. To calculate the log values, the board will providing the log table. Log table यानी क्या होता है, टेबल नहीं होता है ना, सिंपली पेजेस आर देयर. उसमें क्या होता है तुम्हारा लॉगरिथम और एंटी लॉग. एंटी का मतलब क्या है, एंटी लॉग यानी एंटी नहीं, एंटी लॉग, लॉग के उल्टा. तो 2 पेज आएंगे आपको. तो विद द हेल्प ऑफ द 2 पेज वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज. नाउ कोऑर्डिनेट, यस बोलो, लॉग का. तो एग्जाम्पल के आपके पास लॉग टेबल है अभी, चलो मुझे कुछ वैल्यूज मालूम है मैं बताता हूँ. तो मल्टीप्लाई बाय, अभी एक्चुअली वो सिंपल एग्जाम्पल है, अभी लॉग आपके पास टेबल नहीं है. फिर मैं बताता हूँ आपको. तो कैसा होता है देखो, अभी इसके एक्चुअली एग्जाम्पल्स के लिए आपके पास लॉग टेबल है तो बहुत इजी समझ में आएगा. मैं सिंपल लेता हूँ क्योंकि मुझे याद है. 2 into 2
ये आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है कितना है इसका, मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे करूंगा? तो मैं क्या करूंगा इसका, पहले क्या करूंगा मैं इसको log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 2। तो इसमें अभी जब लॉग टेबल में जब देखोगे आप, है ना, तो आप बोले सर कैसा लिख रहे हो आप, दिल से लिख रहे हो क्या? अब तो मैं दिल से लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे याद है ना। तो उसमें वैल्यू आती है, कितना डिजिट मैंने 1, तो यहाँ पे लिखा 0.3010 इसकी वैल्यू है, लॉग टेबल में आपको दिखेगा। अभी आपके पास लॉग टेबल नहीं है, जो लॉग में आप दिखेगा सेम वैल्यू इसकी भी आती है 0.3010। इफ यू आर एडिंग द नंबर्स 0.6020 ये नंबर आएगा, है ना। आपके पास लॉग टेबल है तो आपको इजी समझ में आएगा। फिर क्या करें, ये नंबर का अपन क्या करें, एंटी लॉग लेंगे। पहले क्या कहता आपने, लॉग लिया था ना, तो फिर लॉग का फिर उल्टा नंबर देखिए, ये देखेंगे तो इसका क्या आएगा तुम्हारा 0.6020। जब आप एंटी लॉग देखोगे तो आपको वैल्यूज मिलेगी इसकी 3.999 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 4। वो तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर, आप ये तो नंबर में इजी लिया था, तो अभी कोई से बहुत बड़े नंबर होते हैं, आपको पावर निकालना है 2 पावर जो भी नंबर्स का 21 का 7 पावर निकालना है। तो क्या करोगे आप, 7 log ऑफ 21 वैल्यूज देखोगे, एंटी लॉग निकालोगे, आंसर आ जाएगा। जस्ट ये कुछ रिलेशन से आपको मालूम हो जाएंगे बाद में, एज वी आर यूजिंग विल कम टू नो। आज चाहे तो आप ले लो लॉग टेबल, मार्केट में मिल जाएगा आपको, नवनीत का एक लॉग टेबल लो, आज नहीं तो आपको 11-12 में भी हमेशा काम में आएगा। देन स्लोप्स एंड एरिया। स्लोप्स क्या होता है, स्लोप का मतलब क्या है, व्हाट इज स्लोप? घसरगुंडी, उतार, करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, लाइन का स्लोप ऑफ द लाइन। तो ग्राफ निकालते जब व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। व्हेन वी आर प्लॉटिंग द ग्राफ, सपोज ये ग्राफ है आपका, है ना, स्ट्रेट लाइन है या तो कर्व है, जो भी हो, तो इसकी कितना कर्व है, कितना स्लोप है, इसका अपन स्लोप निकालते हैं, है ना। कैसे भी हो आप ग्राफ, लाइन वैसी होगी, लाइन ऐसी भी होगी। ओके, जस्ट सपोज दिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, few graphs are there. How to find the slope at the particular point? That the two graphs, 1 and 3, figure number 1 and 3. If you are finding the graph is means line is a straight line. Okay, that one will be mostly related with that uniform motion. इसका slope निकालना बहुत आसान है, तो कैसा करोगे आप? You can take any 2 point. What is the formula of slope formula? Slope formula क्या है? y2 minus y1 dividing by x2 minus x1. ये किसके लिए काम में आएगा? When the graph is a straight line. ग्राफ क्या है आपकी, ये कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 3। 2 में स्ट्रेट लाइन है क्या? नहीं, कंडीशन, हाँ, तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले आपको क्या करना है, व्हाट एवर द सुटेबल पॉइंट यू हैव टू सेलेक्ट। यहां से क्या करता हूं मैं, पॉइंट लेता हूं, ये पॉइंट यहां पे, इसको यहां पे मारता हूं, यहां पे आएगा, यहां पे आएगा, बराबर है। यहां से एक पॉइंट लेता हूं और यहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा समझो, तुम्हारा है x1 x2 और इसको क्या कहते हैं तुम्हारा है y1 और ये y2। ये x1 के लिए ये y1 आया और x2 के लिए क्या है तुम्हारा y2 है। अब इसमें भी वैसे ही, सपोज मैं ये पॉइंट ले रहा हूँ, ये लिया x1 सॉरी y1 x1 y2 x2। तो अभी देखो स्लोप निकालना है, स्लोप कैसा है निकालेंगे अपन, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1। अब इसमें कोई वैल्यू भी लेंगे अपन, सपोज मैं लेता हूँ वैल्यूज, इसके सपोज पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट लेता 3 लेता हूँ, इसका लेता हूँ 5, करेक्ट है। इसका भी लेता हूँ मैं यहाँ पर 4 7, कोऑर्डिनेट के हिसाब से जो भी ग्राफ में आएगा वो वैल्यूज लूंगा मैं। यहाँ पे भी क्या लेता हूँ मैं 3 5 4 एंड 7। तो देखिए अब इसमें ग्राफ में क्या हो रहा है, स्लोप y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है इसमें 7 है, y2 की वैल्यू, सॉरी y2 की वैल्यू कितनी है 4 है। 4 माइनस 7 नहीं, माइनस आएगा, देखो 4 माइनस 7 डिवाइडिंग बाय 5 माइनस, दैट इज माइनस 3 बाय 2, है ना। तो यहां पे क्या आएगा स्लोप, 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, 3 बाय 2, है ना। ये तुम्हारा स्लोप। अभी स्लोप का और एक फॉर्मूला है, स्लोप का फॉर्मूला इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, बोलिए। हाँ -3 कैसे, 4 माइनस 7 कितना आएगा बेटा,
y2 कौन सा है, y2 4 है ना, देखो ये अब पहले देखो पॉइंट कैसा लिया अपन ने, ये पहला पॉइंट था y1, यहाँ पे डाला तो क्या मिला मुझे x1, यहाँ पे मारा तो यहाँ क्या मिला मुझे x2, उसके रिलेटेड निकालना पड़ेगा ना पॉइंट। यहाँ पे किसी के थे y1 के साथ क्या है तुम्हारा x1, y2 के साथ क्या है x2, तो इसके साथ मुझे निकालना पड़ेगा y1 के साथ क्या है तुम्हारा x1, y2 के साथ x2, तो इसका ग्राफ क्या है नेगेटिव, स्लोप इज नेगेटिव एंड हियर स्लोप इज अ पॉजिटिव। और एक स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, स्लोप इक्वल्स tan ऑफ थीटा, और एक फॉर्मूला है तो क्या है आपको dy बाय dx, वो आपको अभी याद मत रखो, खाली मालूम होने दो। dy बाय dx आपको क्या करना है, स्लोप निकाल उसका। अब ये ग्राफ में क्या करोगे आप, यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट, टेंजेंट यानी क्या है ये एंगल, अभी जैसे ये एंगल है देखो, इसके एंगल, तो एंगल का क्या है थीटा, क्या है tan ऑफ थीटा, देन आल्सो विल गेट द सेम रिजल्ट। यहाँ पे भी एंगल आया थीटा, देन आल्सो विल गेट द सेम रिजल्ट। आप tan ऑफ थीटा निकाल देंगे तो भी आपको ये रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे tan ऑफ थीटा निकालते हैं तो भी ये रिजल्ट आएगा। एंड हियर यू हैव टू मेक द टेंजेंट, और यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको tan ऑफ थीटा, ये टेंजेंट का tan ऑफ थीटा, अदरवाइज ये कर्व का जो इक्वेशन है उसका कर्व को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द स्लोप, है ना, आगे मालूम हो जाएगा आपको। हियर द टी रेशियोज एंड एंगल, टी रेशियो, टी का मतलब क्या है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो रेशियो क्या है, इट्स इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, लेट मी कंसीडर दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, द ट्रायंगल ए बी सी, ये याद करना है आपको, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इफ सपोज बी इज अ राइट एंगल, बी क्या है सपोज, नहीं आपके बुक में मत देखो, बी इज अ राइट एंगल, देन लेट मी कंसीडर दिस एंगल सी, देन साइन ऑफ सी, साइन सी क्या है याद करना है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस, ट्रायंगल में अपोजिट साइड कौन सी है, सी के अपोजिट में कौन सा है ए बी, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कौन सा है ए सी, अंडरस्टूड। साइन सी क्या है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, द सेम थिंग। तो कॉस सी क्या आएगा, एडजेसेंट साइड बाय एडजस्ट करने वाली इसको पड़ोस वाली, बी सी बाय ए सी, देन tan ऑफ थीटा, अभी अपन देखिए स्लोप में अपन tan ऑफ सी, सॉरी हियर एंगल इज और थीटा वी कैन से tan ऑफ सी, हाँ इसके अपोजिट वाली बाय एडिशन, दैट इज ए बी डिवाइडिंग बाय बी सी, इसे ऐसा भी कहोगे आप साइन सी डिवाइडिंग बाय कॉस सी, ओके, देन कॉट सी 1 अपॉन tan सी, तो क्या होगा तुम्हारा उल्टा बी सी बाय ए बी, साइन कॉस tan कॉट सेक, सेकंड सी इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सी का वैल्यू क्या है आपका, उसके उल्टा होगा ए सी डिवाइडेड बाय, उल्टा है ना रेसिप्रोकल होगा, एंड देन कोसिकन सी 1 अपॉन साइन सी, दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय ए बी। At the same time, if you are observing the values, sin C, what is the sin A? Sin A क्या आएगा बोलो, फिगर में sin A अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये A है, इसका अपोजिट क्या है हाइपोटेनियस, क्या है AC, यानी क्या है BC डिवाइडिंग बाय AC। हाँ आप बोल सकते हैं इफ द साइन ऑफ दिस इज थीटा, देन A क्या, ये 90 डिग्री, तो ये क्या होगा तुम्हारा 90 माइनस थीटा, then what you are saying and BC by AC equals to what cos C, है ना, तो आप ऐसा बोल सकते हो इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा cos C, तो A को क्या लिखता हूं मैं साइन ऑफ 90 माइनस सी इक्वल्स टू cos, तो 90 माइनस के एंगल है, सम ऑफ द एंगल्स, जैसा कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cos C, और cos ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन कॉस tan ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। कैसे है आपको बताया मैंने, अब सभी भी आप वैल्यूज निकाल सकते हो, सिकंड ऑफ 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोसिकंड 90 माइनस थीटा, एंड कोसिकंड 90 माइनस थीटा
equals to secant 90 minus theta. That value also you have to remember. Got it? वैल्यूज नहीं बताया मैंने, वैल्यूज अभी बताऊंगा मैं आपको, हाउ टू रिमेंबर द वैल्यूज. ओके, तो इसके वैल्यूज रेशियोज बताए, तो अपन जनरल रेशियो निकालेंगे, लेकिन कुछ एंगल्स आपको याद करना पड़ेगा, जैसे कि बेसिकली 0, 30, 45, 60 एंड 90. नाउ हियर फॉर दैट पर्पज जस्ट यू हैव टू रिमेंबर द टू ट्रायंगल्स. दो ट्रायंगल्स भी आ सकते हो तो भी समझ में आएगा, अदरवाइज वन ट्रिक आल्सो आई विल गिव टू यू. कौन से ट्रायंगल याद रखना है आपको? ये ट्रायंगल कौन सा? ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, 90 डिग्री. 1 2 √3, 45 45 1 1 √2. ये दो ट्रायंगल है. तीसरा ट्रायंगल आपको दिखेगा नहीं लेकिन वो होगा, दैट इज 1 1 0. ओवरलैप हो गए. एंगल कितना है उसका? 0. ओके, तो यहां से आपको मैं पूछा कोई भी वैल्यू निकाल, साइन ऑफ 30 क्या निकालोगे आप? अपोजिट बाय हाइपो. साइन ऑफ 30 क्या आएगा इसमें? अपोजिट साइड क्या है? 1/2. देन एनी वैल्यू कैन फाइंड. आपको फॉर्मूलास पता है. tan ऑफ 45 क्या है? अपोजिट बाय एडिशन, 1/1. हाउ मच? 1. इस तरह से आप वैल्यूज भी निकाल सकते हो. नहीं समझ में आ रहा है, आपको मेमोराइज ही करना है, तो दूसरी टेक्निक बताता हूं मैं आपको. हाँ बोलिए. हाँ ये बताना है. चलो, साइन ऑफ 0, साइन 0 एंगल, अपोजिट साइड क्या है इसकी? 0 है क्या? साइड कुछ है आगे, कुछ है क्या? चिपक गया है. 0/1 0. साइन ऑफ 90, सपोज 90 के सामने कौन है? 2/2. कितना आएगा? 1. अरे 2/2 1. √2/√2 1 है ना. तो इस तरह से अपन वैल्यूज निकाल सकते हैं, है ना. अदरवाइज द अदर टेक्निक्स सिंपली जस्ट यू हैव टू, दैट वन इज द बेसिकली दे आर यूजिंग दोज आर प्रीफरिंग फॉर द मगअप, जो याद मेमोराइज करने में याद करते हैं, वो ऐसे याद करते हैं. जस्ट टेबल साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सिकन थीटा, कोसिकन थीटा. तो यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे अपन 0, 30 डिग्री, 45, 60. वेरी गुड. आपको सब पता है क्या रे? वेरी क्लेवर, है ना. तो कैसा करोगे आज? आपको 1 2 3 आता है? कहां तक आता है? 4 तक आता है क्या? वेरी गुड. देन व्हाट यू हैव टू डू? जस्ट यू हैव टू राइट हियर फर्स्ट 0 1 2 3 4, ऐसा लिखना है. सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? डिवाइड बाय एवरी नंबर बाय 4. हर नंबर को क्या करूंगा मैं? डिवाइड करूंगा 4 से. चलेगा? अब क्या करूंगा? इसका स्क्वायर रूट्स लूंगा बाय टेकिंग द स्क्वायर रूट्स. तो जो वैल्यू जाएंगी वो वैल्यू कौन सी होगी तुम्हारी? साइन की. 0/4 0. 1/√4 का कितना है? 2. 1/2, दैट इज 1/2, दैट इज 1/√2. √3/2 एंड 1. व्हाट इट? साइन आ गया. कॉस इसे उल्टा लिखना है, क्योंकि पता है अपने को दोनों की सम की एडिशन क्या है? 90 डिग्री है ना. साइन ऑफ 90 इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा. कॉस ऑफ 90 इक्वल्स साइन ऑफ 90 माइनस थीटा. तो यहाँ पे क्या है? 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0. tan क्या होता है? साइन बाय कॉस. देन 0/1, 1/1 √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड. 1/0 कुछ आता है क्या? उसे बोलते हैं नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी. देन कॉट, अगेन द रिवर्स वे, इंफिनिटी, √3 1 1/√3 एंड 0. सेकंड थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा. कॉस की वैल्यू क्या है? इसके रेसिप्रोकल करना है. 1/1 अगेन 1, √3/2 2/√2/1 that is 2 and 1 by there is again 0/1 that is not defined. यहाँ पे कुछ नहीं तो कैसे कंसिडर करूंगी 1 है. देन 1/0
again not defined. If the denominator is 0, is not defined. Then again by the reverse way, the not defined 2 root 2 2 by root 3 and 1. तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूलेज वैल्यूज याद कर सकते हो. गॉट इट. ये क्या है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. यहाँ पे आपको याद करना आसान है, लेकिन आपको मैं सडनली पूछता हूँ व्हाट इज वैल्यूज ऑफ सिकन 35 सिकन 45, तो उसके लिए सिकन पूछता हूँ तो सर पूरा टेबल निकालना पड़ेगा. ट्रायंगल अपना क्या है, हाइपोटेनस बाय एडजेसेंट, वी कैन फाइंड वेरी सिंपली, है ना. आपको कुछ पूछा है मैंने, कोसिकन 45, क्या है कोसिकन 45, बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल 45 45 1 1 रूट 2. अब क्या करना, कोसिकन 45 के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रायंगल नहीं है टेबल निकालना पड़ेगा और वैल्यू ढूंढना पड़ेगा. फॉर्मूले में पता है आपको क्या है फॉर्मूला, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड. हाइपोटेनस क्या है इसका, डिवाइडिंग बाय 1, कोसिकन 45, कोई भी वैल्यू निकाल सकते. tan of 45, sin 45, you can use secant 45, you can use this triangle. 30 60 के निकालने के लिए होगा तो 60 1 2 root 3. You can find all the values with the help of these two triangles. समझ में आ गए? Then we'll proceed now for the next slides. Here units and its conversions. तो unit and conversion is also very important points. Basically आपको शायद पता होगा कन्वर्शन मीटर टू किलोमीटर, मीटर टू सेंटीमीटर. कैसा करते हो आप, मिनटों में, मिनटों का काम घंटों में. दैट कन्वर्शन आल्सो यू शुड नो. द बेसिकली द 1 मीटर इक्वल्स हाउ मच, 100 सेंटीमीटर. ये बहुत बार आएगा आपको. 1000 किलोमीटर, 1000 मीटर इक्वल्स टू 1. ये हो गया तुम्हारे लेंथ के बारे में. सभी डेसीमीटर आएगा, नैनोमीटर आएगा. नैनो का मतलब क्या, 10⁻⁹, पिकोमीटर 10⁻12, है ना. तो ये क्या, कन्वर्शन ऑफ द लेंथ. आपको कन्वर्शन ऑफ लेंथ शायद पता होगा. सेम वे आपको कन्वर्शन ऑफ टाइम आल्सो. मास 1 किलोग्राम कितना होता है, वेरी गुड, 1000 ग्राम, है ना. तो मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम यानी 10⁻³ ग्राम, है ना. छोटा, मिली का मतलब क्या है, छोटा. तो उस तरह से मास के कन्वर्शन आना चाहिए. टाइम के पता है आपको, टाइम करना है तो 60 सेकंड कितना है, 1 मिनट्स, है ना. 1 डे 24 आवर्स, दैट वन आल्सो, दैट कन्वर्शंस. एंड द यूनिट्स, यूनिट्स क्या है, दैट इज अ सेंटीमीटर यूनिट्स. दिस इज नोन एज द नंबर. व्हेन यू आर राइटिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, कैसा लिखोगे आप, फर्स्ट यू हैव टू राइट द magnitudes or numbers, then followed by the units. जैसे कि how many students in our class, first we are writing numbers and then students is the units. Then numerical values, 5 centimeter, 5 is the number, units, and centimeter is the unit. Number followed by the units. In this way we are writing any physical. टेम्परेचर मेजर करना है तो क्या करोगे आप, दिख रहा है आपके 16 डिग्री सेंटीग्रेड. तो 16 क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड डिग्री सेंटीग्रेड इज अ यूनिट. समझ में आ गया. तो आप जाते हो दवाखाने में वगैरह, कभी जाते हो, बीमार गिरते हो क्या नहीं, आपका नॉर्मल टेम्परेचर कितना है बॉडी का, 37 डिग्री. ओके, आप कभी समझो कंफर्ट नहीं करते हो, बीमार गिरते हो, तो आपका टेम्परेचर क्या होता है, 100. हाँ, दिस वेरी क्लेवर. तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 फ़ारेनहाइट, है ना. यहाँ पे कन्वर्शन है. तो यहाँ पे क्या है, डिग्री सेंटीग्रेड टू द फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेंटीग्रेड. और एक स्टैंडर्ड यूनिट पता होगा आपको, केल्विन, वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना. तो यहाँ पे क्या है, यूनिट साइन इज कन्वर्शन. देन टेम्परेचर एंड कन्वर्शन, नाउ वी जस्ट डिस्कस. तो क्या है, बेसिकली 4 स्केल्स आर देयर. द वन इज द टेम्परेचर थर्मामीटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0. एक्चुअली वी आर यूजिंग द वाटर इज स्टैंडर्ड फॉर्म, पानी का स्टैंडर्ड लेते हैं अपन. तो boiling freezing point of water is 0 and boiling point of water is 100. It is one cell, you can know that as degree centigrade scale, and then we are equally dividing in a 100 part. What is the again Kelvin scale. Here we are dividing in a degree of division of, here 100 divisions are there, here 180 divisions. Or first we will discuss about the Kelvin only. $100 डिविजन्स. तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, स्टार्टिंग फ्रॉम क्या है तुम्हारा 270
3.15 और जस्ट कैन सिंपली जस्ट रिमेंबर 273 ओनली, तो फिर कितना आएगा तुम्हारा 370 डिग्री। ये क्या हुआ तुम्हारा स्केल, कौन सी तुम्हारी केल्विन। और एक स्केल है फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या होता है तुम्हारा डिवीजन कितने होते हैं 180 डिवीजन, स्टार्टिंग फ्रॉम 32 देन 212. In this way, we can convert the temperature degree centigrade to Kelvin and Kelvin to degree centigrade. How to convert? Just basic formula is there. The degree centigrade minus 0 because starting from the 0 here and divided by 100. The Kelvin minus 273 divided by how much? 100. And Fahrenheit F minus 32 divided by 180. ओके, सपोज आपको पूछा मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना केल्विन होगा, तो क्या निकालोगे आप? जस्ट यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू टेक द टू रिलेशंस. सपोज टेम्परेचर इज द 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना केल्विन होगा? 37 डिवाइडिंग बाय 100 केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100. सिंप्लीफाई दिस वन, व्हाट विल गेट? द 100 the minus 273 after shifting it will be plus, then Kelvin equals to how much? 273 plus, then how much? 300. तो क्या होगा तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 310. ओके, देन 310. ओके, तो उसी तरह से आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है. तो क्या करोगे आप? यू हैव टू यूज दैट स्केल. डिग्री सेंटीग्रेड कितना था अपना 37 बाय 100 F minus 32 dividing by 180. और फॉर सिंप्लिसिटी जनरली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर 5 by 9, we are simplifying, multiplying, dividing, and if you are representing the 5 by 9, by this way also we are able to convert the temperature degree centigrade to Kelvin and Kelvin to डिग्री सेंटीग्रेड. समझ में आ गया है? आपका जब हीट टॉपिक चालू हो जाएगा, जब आपको एग्जांपल्स है, यहाँ पे सब जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ्स है, तो पे बता रहा हूँ मैं आपको. नाउ जस्ट अभी आप जंप करोगे फिजिक्स में. अब तक तो ये बेसिक था अपना मैथ्स. नाउ आई थिंक वी आर रेडी टू जंप, वी आर रेडी टू लर्न टू फिजिक्स नाउ. नाउ अभी अपन क्या है फिजिक्स में, अभी जस्ट अभी अपन चालू नहीं किए सब्जेक्ट चालू करना है. आज नहीं करोगे अपन, बाद में ही करेंगे. तो वेरी फर्स्ट लेसन व्हाट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न अबाउट दैट लेसन मोशन. व्हाट इज द मोशन? आपके हिसाब से मोशन क्या है? क्या है मोशन? क्या है मोशन? चेंजिंग प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम इज नोन एज मोशन. चलो मैं बताता हूं. अभी मैं यहां पे खड़ा हूं, बोर्ड मोशन में या नहीं है? कौन बोलता है? वी कैन डिफाइन द मोशन इन सिंगल टर्म. मोशन अपन एक सिंगल टर्म में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट था मेरा. आपने आंसर सही दिया क्योंकि मेरा क्वेश्चन ही गलत था. बोर्ड तुम्हारा क्या है? यहां पर स्टेबल है. विद द रेफरेंस ऑफ मी, मोशंस वी कांट डिफाइन विद द सिंगल टर्म. फॉर डिफाइन द मोशंस वी रिक्वायर द 2 points. विच 2 points? वन इज द रेफरेंस पॉइंट एंड वन इज द ऑब्जेक्ट पॉइंट. अभी सपोज यहाँ पे बोर्ड है, मैंने कहा मैं यहाँ पे था, मैं आगे जा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा? बोर्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मी. इज इट करेक्ट? अब बोलूंगा बोर्ड इज मूविंग टूवर्ड्स मी. इज इट करेक्ट? नो? यस और नो? कोई एक जन बोलो. माय स्टेटमेंट वाज करेक्ट. क्या बोल रहा हूं मैं? यहां पे बोर्ड था, मैं क्या बोल रहा हूं अभी? बोर्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम मी. इज इट करेक्ट? नो? हाँ, क्या बोल रहा है बोलिए? आई एम मूविंग, बोर्ड इज नॉट मूविंग. ओके, नाउ बोर्ड इज कमिंग टूवर्ड्स मी. इज इट करेक्ट? करेक्ट. Why? What we are saying regularly? Sun rises from. क्या कहोगे? सनराइज होता है. क्यों बोलते हैं फिर अपन? सनसेट्स वेयर? सनसेट होता है. क्यों कहते हैं? वी आर रेफरिंग टू हुम. इंसान को आदत है क्या करना है? उंगली दिखाने की. खुद की तरफ नहीं दिखाता, किसकी तरफ दिखाता है? दूसरों की तरफ. तो इसलिए क्या होगा? सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट. सन की तरफ उंगली दिखा रहा है. ऐसा नहीं बोल रहा अर्थ रोटेट होती बोलता है क्या अपन? अपन ऐसा बोलते हैं अर्थ रोटेट होती बोलते हैं? आप सपोज ट्रेन में सफर कर रहे हो, करते हैं नहीं? चलो कर रहे हो, लेट मी इमेजिन. तो क्या है?
ट्रेन के आजू बाजू में कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पोल होते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन? पोल पीछे गए, ऐसा बोलते हैं ना? क्या बोले? मैं आगे क्या बोलते हैं? ट्रेन मूव हो रही तो क्या बोलते हैं आप? क्या बोलते हो? पोल पीछे जाता है क्या? फिर आगे कौन जा रहा है? आप क्या बोलते हो? वाई? हाँ, क्यों? बिकॉज अपनी आदत क्या है, इंसान की फितरत क्या है? क्या है? उंगली दिखाने की। किसको? दूसरे को, खुद को नहीं, है ना? इसलिए बोलते पोल पीछे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं नहीं बोलोगे। दैट्स वाई मोशन इज अ रिलेटिव फेनोमेना। मोशन क्या है? रिलेटिव। मुझे जैसा लग रहा है वैसा बोलूंगा। मेरे लिए बोर्ड नजदीक आ रहा है, बराबर है। बोर्ड के लिए मैं नजदीक जा रहा हूं, बोर्ड का रेफरेंस है, बोर्ड बोलेगा। वो कौन बोलेगा? मेरे लिए क्या हो रहा है वो मैं बोलूंगा। अभी मैं यहां पे स्टेबल हूं, फॉर मी बोर्ड इज अ ऑन रेस्ट। मेरे लिए बोर्ड क्या है? आपने पहले पूछा था बोर्ड कैसा है तुम्हारा, रेस्ट पे मोशन में? बोर्ड कहां पे आपका? रेस्ट पे, ऐसा आपको लगता है क्योंकि यू आर रेफरिंग विद द हुम? यू। तो मैंने क्वेश्चन पूछा है बोर्ड इज इन मोशन विद द रेफरेंस ऑफ अर्थ और मून, तो क्या होगा? अर्थ पर पड़ रहा है, अर्थ रोटेट हो रही है, अर्थ क्या हो रही है तुम्हारी, तो बोर्ड क्या हो गया तुम्हारा? मोशन में है क्या, रेस्ट में है? सही है। तो इसलिए तुम्हारे बताना पड़ेगा विद द रेफरेंस ऑफ हुम वी आर जजिंग, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो आप, है ना? देन लेट मी एग्जांपल, एक्चुअली दिस इज लास्ट साइड और ओके दिस इज लास्ट वन, ओके ओके, जस्ट विल ऐड वन साइड. Let I will give some simple example of relative motion. Actually, it will be again in next class. We have to revise in the same way. Suppose three friends are there. Friend A, B, C. तीनों का ओपिनियन देखेंगे, क्या सोच रहे तीनों भी. एक छोटी शॉर्ट स्टोरी. Suppose the A and B are moving together in one bus. A और B क्या है तुम्हारे, दोनों भी एक बस में जा रहे हैं और बस तुम्हारी चालू हो गई और बस तुम्हारी कहाँ गई, यहाँ पे आएगी. तो दोनों की सबकी सोच में क्या फर्क होगा देखो अभी. तो ए क्या बोलेगा सी के बारे में? सी पीछे रह गया. बी क्या बोलेगा सी के बारे में? सी पीछे रह गया. सी क्या बोलेगा? मेरे दोस्त आगे निकल गए. क्या हो रहा है देखो. ए क्या बोलेगा? बी मेरे साथ है, दे आर बोथ टुगेदर ना. तो क्या बोलेंगे आप? ए बोलेगा कि बी आगे गया? नहीं. आप रनिंग करते हो तो बोलते हो मेरी नाक आगे गई बोलते हो, मेरे हाथ आगे गए बोलते हो? नहीं, बिकॉज वी आर वन बॉडी. तो ये क्या है तुम्हारे एक ही बस में है, एक ही बॉडी में है ना. आप सब अर्थ पे घूम रहे हो तो आप बोलते क्या इन्हें आगे गया उन्हें आगे गया, सब साथ में है. तो वी आर ऑलरेडी इन मोशन. अपन बोलते हैं इन्हें आगे गया इन्हें पीछे गया, सब साथ में है ना. दैट्स वाई मोशन इज द, सबके इस ओपिनियन से क्या हो गया, इसका आंसर अलग है. ए के हिसाब से सी पीछे गया, बी के हिसाब से सी पीछे गया, सी के हिसाब से दोनों भी, और ए के हिसाब से बी रेस्ट में और बी के हिसाब से ए भी रेस्ट में. तो यहाँ पे लोगों की सोचने की तरीका है जो है, हर एक का ओपिनियन अलग है. दैट विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू. टाइम अप ना.